Hello all. In the previous lecture, in torsion lecture, uh, one problem is given as a homework. Here I will solve this problem. A hollow shaft 1.60 meter long has an outer diameter 42 mm and it is subjected to a torque of 900 Newton meter. All have done the previous 9 problem. This is the 10th problem. It is given as a homework. Here I will solve it. Length is given to you, diameter is given to you, torque is 900 न्यूटन मीटर. इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन एमएम में, तो मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ नाउ shear stress is not to exceed 65 Newton per mm square and theta is not to exceed 4 degree. 4 degree means 4 into pi by 180 radian means 0.0698 radian. Now C value is instead of G notation is here mentioned C, then your C value is G की जगह C लिया है 7.7 multiply by 10⁻⁴ Newton per mm square. So here tau and theta both are given to you. Then you have to calculate the diameter value on the both criteria, shear stress criteria and angle of twist criteria. Means diameter based on shear stress T by J is equal to tau by R. Means torque value is 900 into 10⁻⁴, J value is pi by 32, outer diameter raised to 4 means 42 raised to 4 minus D raised to 4 is equal to 75 divided by R means 42 by 2, outer diameter by 2. Then it becomes 32 multiply by 900 multiply by 10⁻³ into 42 divided by pi multiply by 75 into 2 is equal to 42⁻⁴ minus D⁻⁴. Means 42⁻⁴ minus D⁻⁴ is equal to 2566850.922. D⁻⁴ माइनस उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 42⁻⁴ माइनस 2566850.922 means D becomes 42⁻⁴ minus 2566850.922 raised to 1 by 4. Your diameter value becomes 27.17 mm. On shear stress criteria, in the next criteria, diameter based on angle of twist, diameter based on angle of twist, on angle of twist, T by J is equal to G theta by L. T by J is equal to G theta by L. Torque value is 900 multiplied by 10⁻⁵. J value is pi by 32. Sorry, 42⁻⁴ minus D⁻⁴. G value is 7.7 into 10⁻⁴. G और C वैल्यू C दिया है प्रॉब्लम में, अब G की जगह C लिखो या G लिखो. 0.0698 is theta value and the length is 1600. Then 900 multiply by 10⁻³ multiply by 1600 multiply by 32 divided by 7.7 into 10⁻⁴ into 0.0698 into pi is equal to 42⁻⁴ minus D⁻⁴. Means 42⁻⁴ minus D⁻⁴ is equal to, after calculation you will get 2729081.151. Then 42⁻⁴ minus 2729081.151 is equal to D⁻⁴. Then D becomes 42⁻⁴ minus 2729081.151 raised to 1 by 4.
then diameter is 24.87 mm, and whatever your larger value out of both criteria. In previous criteria you got 27.17 and here it is 24.87, means safe diameter will be larger one, that is 27.17 mm. Now torsion is completed. Now come to next chapter, theories of elastic failure. In unit number 5, one of the important topic, theories of elastic failure. There are 5 criteria of theories of elastic failure. First criteria is maximum principal stress theory. It is also called Rankine's theory. फॉर्मूला फॉर दिस इज सिग्मा 1 और सिग्मा P1 और सिग्मा N1, तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, प्रिंसिपल स्ट्रेस को, इज इक्वल टू सिग्मा UT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड फॉर इलास्टिक मटेरियल सिग्मा YT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. जनरली हम यही सिग्मा YT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इलास्टिक मटेरियल का ही प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टडी करेंगे. दैट्स वाई सिग्मा YT अपॉन और SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टडी करेंगे. सिग्मा को S भी बोल सकते, स्ट्रेंथ, yield strength in tension, T for tension, Y for yield, U for ultimate. Maximum shear stress theory or Guest theory or Tresca theory or Coulomb's theory. Formula for this is sigma 1 minus sigma 2 is equal to SYT upon factor of safety और sigma YT upon factor of safety. लेकिन जब sigma 1 sigma 2 sigma 3 तीनों भी वैल्यू गिवन रहे तो आप कैलकुलेट करोगे sigma 1 minus sigma 2, sigma 2 minus sigma 3 and sigma 3 minus sigma 1, and whatever larger value out of these two with modulus में नेगेटिव भी आया तो पॉजिटिव कंसीडर करके जो भी वैल्यू आएगा that should be equal to SYT upon factor of safety. अगर तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन है प्रॉब्लम में तो आप यूज करेंगे तीनों को. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 and out of these three whatever larger value you will get you have to consider it and it should be equal to SYT upon factor of safety. Now maximum principal strain theory or Saint Venant's theory, sigma 1 minus mu sigma 2 equal to SYT upon factor of safety. Strain energy theory, maximum strain energy theory or total strain energy theory or Higgs theory. Formula for this is sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 is equal to SYT upon factor of safety square. Or if 3 stresses are given, then consider sigma 1 square, sigma 2 square, sigma 3 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 1 sigma 3 is equal to sigma YT upon factor of safety square. And fifth one is shear strain energy theory और वॉन मिसेस theory और maximum distortion energy theory और हैंकी theory. नेमिंग याद रखेंगे, कुछ भी आ सकता है नेमिंग एग्जाम में. तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा और SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्क्वायर. और तीन रहा तो तीन स्ट्रेसेस रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना है. कम टू प्रॉब्लम. A solid circular shaft is subjected to bending moment 45 kilonewton meter and torque of 15 kilonewton meter, means bending moment 45 kilonewton meter means 45 multiplied by 10 raised to 6 Newton mm. Torque of 15 kilonewton meter means 15 multiplied by 10 raised to 6 Newton mm. Design the diameter of the shaft according to 3 theory. Poisson's ratio, it is 0.25. Stress at elastic limit, that is SYT 200 MPa, and factor of safety it is equal to 2. So first of all calculate principal stresses sigma 1 sigma 2. Formula for this is 16 upon pi d cube m plus minus under root m square plus t square. So 16 upon pi d cube is
Bending moment is 45 into 10 raised to 6 plus minus 45 into 10 raised to 6 square प्लस 15 इंटू 10 रेज टू 6 स्क्वायर। अभी कॉमन लेना सीखेंगे हम, कॉमन कैसे लेना है सो दैट इजी कैलकुलेशन हो। 16 अपॉन पाई डी क्यूब तो ठीक है, 10 रेज टू 6 का स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10 रेज टू 6 होगा, और यहाँ भी 10 रेज टू 6 है। यू मे टेक कॉमन 10 रेज टू 6, इट बिकम्स 45 प्लस माइनस 45 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। Then after calculation 16 upon pi into 10 raised to 6, it becomes 5.09 into 10 raised to 6, 45 plus minus 47.43 अपॉन डी क्यूब। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी 5.09 multiply by 10 raised to 6, 45 plus 47.43 divided by d cube. Then it becomes 470.46 into 10 raised to 6 divided by d cube. Similarly sigma 2 कैलकुलेट करना है। सिग्मा 2 के लिए क्या करेंगे, 5.09 into 10 raised to 6, 45 minus 47.43 divided by d cube, it becomes minus 12.36 into 10 raised to 6 divided by d cube. Now maximum principal stresses we have calculated. Now there are three theories given to you. On the basis of three theory we have to calculate diameter value. Then first theory is maximum principal stress theory. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या है हमारे पास, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड सिग्मा 1 वैल्यू इज 470.46 into 10 raised to 6 divided by d cube is equal to s y t, it is 200 upon factor of safety is 2. Then d cube becomes 470.46 into 10 raised to 6 into 2 divided by 200. तो d क्या आ जाएगा हमारा 470.46 into 10 raised to 6 into 2 divided by 200 raised to 1 by 3. Then diameter value becomes 167.56 mm. This is your diameter based on maximum principal stress theory. Now come to second theory. In the problem it is given maximum shear stress theory. तो maximum shear stress theory क्या है हमारा, maximum shear stress theory, maximum shear stress theory है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन सिग्मा 1 इज 470.46 multiply by 10 raised to 6 divided by d cube minus sigma 2 is minus 12.36 into 10 raised to 6 divided by d cube which equal to SYT, it is 200 upon factor of safety is 2. आफ्टर माइनस माइनस ये प्लस होगा, ऐड करेंगे, इट बिकम्स 482.82 इंटू 10 raised to 6 divided by d cube equal to 100. Then d cube becomes 482.82 into 10 raised to 6 divided by 100. Then d becomes 482.82 into 10 raised to 6 divided by 100 raised to 1 by 3. So diameter value becomes 167.567.
Now, so diameter value becomes on the basis of maximum shear stress theory 169.01. 169.01 mm. Third theory is maximum strain energy theory. In the problem it is given maximum strain energy theory. तीसरा पूछा है हमें maximum strain energy theory से. Maximum strain energy theory. मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का के लिए फॉर्मूला है हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर. सिग्मा 1 स्क्वायर इज 470.46 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय डी क्यूब का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 12.36 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब टू द स्क्वायर minus 2 into Poisson's ratio. Poisson's ratio is 0.25. Again sigma 1 470.46 into 10⁻⁶ divided by d cube minus 12.36 into 10⁻⁶ divided by d cube is equal to SYT. SYT is 200 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन 2 का स्क्वायर. अब कॉमन कैसे लेंगे ये देखना है. 10⁻⁶ का स्क्वायर है ये, यहाँ भी स्क्वायर है 10⁻⁶ का और यहाँ 10⁻⁶ मिलके स्क्वायर होगा तो 10⁻12 आ जाएगा बाहर. यहाँ भी डी क्यूब का स्क्वायर है बाहर, डी क्यूब का स्क्वायर और डी क्यूब d⁻⁶ आए तो डी क्यूब का स्क्वायर क्या होता है d⁻⁶. कॉमन ले लिया हमने तो अभी अंदर क्या आएगा 470.46. ये कॉमन लेना अच्छे से आना चाहिए माइनस 12.36 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 470.46 माइनस 12.36 इक्वल टू 200/2 का स्क्वायर जो भी आएगा 200/2 का स्क्वायर इट बिकम्स 100 का स्क्वायर. तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻12 तो ठीक है. अगर अंदर वाले को कैलकुलेट करेंगे हम तो इट बिकम्स 10⁻12. अंदर वाला कैलकुलेशन आ जाएगा हमारा 224.39 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई d⁻⁶ इज इक्वल टू 100 स्क्वायर. d⁻⁶ बिकम्स 10⁻12 224.39 into 10⁻³ divided by 100 square. So D becomes 10⁻12 224.39 into 10⁻³ divided by 100 square raised to 1/6. तो हमारा डायमीटर वैल्यू आ गया इससे 167.94 mm. और ये नियर बाय वैल्यू आना चाहिए. सभी थ्योरी से आसपास ही वैल्यू आना चाहिए. इससे 167 आया, इससे 169 आया और प्रीवियस से 167. ये आसपास आना चाहिए. ऐसा नहीं एक 167 है और एक 300 है या 200 है. ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए. तो चेक करना है कहाँ पे रॉन्ग किए हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है. जब बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दिया रहे हमें. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ. Axial pull is given to you 10 kilonewton means 10 into 10⁻³ Newton means 10,000 Newton. Shear transverse shear force 5 kilonewton means 5,000 Newton. Maximum distortion energy theory, maximum shear stress theory, maximum principal stress theory से हमें कैलकुलेट करना है. Elastic limit in simple tension it is 200 MPa SYT. Poisson's ratio is 0.2. Factor of safety is 3. Now calculate principal stresses first. Sigma 1 2. Formula for this is sigma by 2
जब सिग्मा और पी और एस दिया रहे तो उसके लिए पहले आप पी और एस कैलकुलेट कर लो। डायमीटर पूछा है तो पहले पी सिग्मा और टाउ कैलकुलेट करेंगे। सी नॉर्मल स्ट्रेस पी अपॉन ए, it becomes 10,000 divided by A. Tau is shear force upon A, it becomes 5,000 divided by A. Then formula for principal stress sigma 1 2, it becomes sigma by 2 plus minus sigma by 2 का square plus tau square. Then sigma is 10,000 divided by A और ये 2 है तो 2 तो रहेगा, प्लस माइनस अगेन 10,000 डिवाइडेड बाय ए और 2 तो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ टाउ टाउ क्या है 5,000 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर हो गया ये। तो क्या आ जाएगा ये 10,000 बाय 2 5,000 डिवाइडेड बाय ए, अगेन 5,000 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, 5,000 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो 5,000 बाय ए का स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो 5,000 बाय ए होगा, तो हम डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं 5,000 बाय ए। इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 1 प्लस 1, बिकॉज 5,000 बाय ए होल स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट के बाहर आके 5,000 बाय ए होगा, तो ओवरऑल कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ रहेगा 1 और ये तो 1 रहेगा फिर। तो 5,000 डिवाइडेड बाय ए 1 plus minus 1.414, then sigma 1 becomes 5,000 1 plus 1.414 divided by a, ये आ गया 12.07 into 10⁻³ divided by a। सिग्मा 2 आ जाएगा 5,000 1 minus 1.414 डिवाइडेड बाय ए, क्या आ जाएगा ये -2.07 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ गया। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 फिर से वैसे ही तीनों थ्योरी का सॉल्व करना है हमें। फर्स्ट थ्योरी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम distortion energy theory। maximum distortion energy theory, in maximum distortion energy theory formula for this is sigma 1 square sigma 2 square minus sigma 1 sigma 2 equal to SYT upon factor of safety to the whole square। तो sigma 1 square क्या आएगा हमारा, sigma 1 it is 12.07 multiply by 10⁻³ डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 अगेन 12.07 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ए, सिग्मा 2 माइनस 2.07 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू SYT। SYT की वैल्यू क्या है 200 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है प्रॉब्लम में 83। अभी देखो 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 आएगा ये, यहाँ भी 10⁻³ का स्क्वायर है और यहाँ भी 10⁻³ का स्क्वायर है, तो 10⁻6 हमने कॉमन ले लिया। नीचे ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया। अंदर क्या आएगा 12.07 का स्क्वायर माइनस 2.07 का स्क्वायर माइनस 12.07 इंटू माइनस 2.07 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 3 टू द स्क्वायर। 1 मिनट।
प्रैक्टिस करो 10 मिनट। देन it becomes 10 raised to 6 multiply by 174.9, ये अगर अंदर का कैलकुलेट करेंगे तो 174.95 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4.44 इंटू 10 raised to 3, 4.44 इंटू 10 raised to 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर आ जाएगा 10 raised to 6 मल्टीप्लाई बाय 174.95 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 10 raised to 3, तो ए आ जाएगा हमारा अंडर रूट 10 raised to 6 174.95 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 10 raised to 3, तो ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई 198.50 और एरिया होता है हमारा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इट बिकम्स 198.50, तो डी स्क्वायर आ गया 4 इंटू 198.50 डिवाइडेड बाय पाई, तो डी आ जाएगा अंडर रूट 4 198.50 डिवाइडेड बाय पाई, डायमीटर की वैल्यू आई 15.89 mm। सिमिलरली दूसरी थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या करेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो सिग्मा 1 वैल्यू इज माइनस 2 पॉइंट डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 200/3, तो 10 raised to 3 कॉमन, 10 raised to 3 कॉमन, 12.07 प्लस 2.07 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 200/3, एरिया आ जाएगा 10 raised to 3 12.07 2.07 3 ऊपर आ जाएगा इधर डिवाइडेड बाई 200, इसकी वैल्यू आ गई कैलकुलेट करके 212.1। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 212.1, डी स्क्वायर बिकम्स 212.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई, तो डायमीटर आ गया हमारा अंडर रूट 212.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई, डायमीटर की वैल्यू आई यहाँ से कैलकुलेट करके 16.43 mm, 16.43 mm। तीसरी थ्योरी गिवन है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या करना है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा 1 की वैल्यू है 12.07 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 200/3, तो ए आ गया हमारा 12.07 इंटू 10 raised to 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 200, एरिया की वैल्यू आ गई 181.05 mm square। After getting the value of a, pi by 4 d square equal to 181.05, d is equal to 4 into 181.05 divided by pi अंडर रूट, तो डायमीटर की वैल्यू हो गई 15.18 mm। तो तीनों भी क्राइटेरिया से हमने
डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और प्रीवियसली डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रॉब्लम में 3 स्ट्रेसेस गिवन है. स्टील स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. सिग्मा 1 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ 3 गिवन है. सिग्मा 2 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा 3 इट इज -30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. SYT दिया है हमें, SYT की वैल्यू गिवन होगी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये SYT की वैल्यू है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0.3. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट थ्योरी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. जब 3 स्ट्रेसेस दिया रहे, डायरेक्टली यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस ही दिया है इस प्रॉब्लम में, बाकी में प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करते थे. टाइप 1 पढ़ा हमने जब बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दिया रहे. दूसरा पढ़ा जब पुल दिया रहे और शियर फोर्स दिया रहे. तीसरा जब तीनों भी स्ट्रेसेस दिया रहे. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा 1 इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा SYT अपॉन सिग्मा 1 250 और सिग्मा 1 आ गया हमारा 120. तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 आ गया. दूसरी थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जब 3 स्ट्रेसेस दिया रहे, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी maximum shear stress equal to maximum shear stress equal to that is sigma larger of 3 दिया रहे. तो कैसे shear stress theory सॉल्व करेंगे हम. लार्जर ऑफ मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3. मॉड में नेगेटिव भी आया तो पॉजिटिव देखना है हमें. सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 120 माइनस 60, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 60 माइनस ऑफ माइनस 30 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 माइनस 30 माइनस 120. तो 120 माइनस 60 इट इज 60 90 माइनस 150 मीन्स मॉड वैल्यू अगर लेंगे तो बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है 150. दिस इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकम्स SYT अपॉन 150. मॉड में निगेटिव भी पॉजिटिव देखना है. निगेटिव भी बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा. तो जो तीनों में लार्जर वैल्यू है वो हमारा 150 हो गया. दिस इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ. जब 3 स्ट्रेसेस दिया रहे तो ऐसे तो नॉर्मल हमने देखा था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है शियर स्ट्रेस थ्योरी. तो यहाँ से SYT हमारा 250 बाय 150. योर आंसर इज 1.67. नाउ थर्ड इज तीसरी थ्योरी है. यहाँ याद रखना है, नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू याद रखनी है. तीसरी थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी. 4 थ्योरी दिया है. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया, तीसरा हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी दूसरा करते सॉल्व. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी
सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 is equal to SYT upon factor of safety. Sigma 1 value is 120 minus Poisson's ratio 0.3. 1 by m means Poisson's ratio होता है. Sigma 2 is 60 and sigma 3 is negative 30 means यहाँ minus 30 आएगा. SYT 250 upon factor of safety. तो factor of safety क्या आ जाएगा? 250 divided by ये नीचे आ जाएगा 120 minus 0.3 इंटू 60 माइनस 30. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी 2.25 समथिंग. नाउ कम टू फोर्थ थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू sigma 1 sigma 2 sigma 1 sigma 2 sigma 2 sigma 3 plus sigma 1 sigma 3 is equal to SYT upon factor of safety का square. Sigma 1 square that is 120 square, sigma 2 it is 60 square, sigma 3 minus 30 square, Poisson's ratio 0.3, sigma 1 sigma 2 120 into 60, sigma 2 sigma 3 60 into minus 30 and sigma 1 sigma 3 120 into minus 30 is equal to SYT that is 250 upon factor of safety का स्क्वायर. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एलसी पे टाइप करके भी आ जाएगा. ऐसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. ये उधर 250 आएगा, रूट हटाओ स्क्वायर हटाओगे तो 250 का स्क्वायर का रूट 250 आ जाएगा. इधर अपॉन में 120 स्क्वायर 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.3 120 into 60, 60 into minus 30 and 120 into minus 30. You will get 1.87 is the strain energy factor of safety with strain energy theory formula. Now come to next. ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली. क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कर लेंगे सॉल्व. फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, एक्सियल पुल दिया था. यहाँ भी क्वेश्चन बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल और शियर फोर्स गिवन है, तो उसकी तरह सेम सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा हमारा. यहाँ भी वही दिया है, एक्सियल पुल दिया है प्रॉब्लम में और ट्रांसवर्स शियर फोर्स दिया है. तो टाउ कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, इलास्टिक लिमिट इन टेंशन SYT गिवन है और फैक्टर एज इट इज है. क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व हो वैसे सॉल्व करना है. फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं सॉल्व करूंगा पार्ट 2 जब इलास्टिक फेल्योर का लूंगा मैं. यहाँ भी पुल और शियर फोर्स है, सिमिलर क्वेश्चन है एज इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट में M और T दिया है. तो ये सभी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है बाकी के सभी क्वेश्चंस. तो आज इस लेक्चर में इतना ही. इन पार्ट 2 ऑफ थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेल्योर आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.